In the last class, we studied initial consideration for payroll calculation, in which we studied कि payroll के calculation के लिए at least basic requirements क्या होती है किसी company की to calculate and process the salary in a proper way. Okay. In this class, we will since payroll management is all about salary calculation, primarily about salary calculation, so you must know what are the components of salary. There are certain things which vary in private sector, public sector, and public sector enterprises. Okay, so basically, when we talk about government sector, public sector, the salary is fixed. For a certain level, the salary is fixed, right? Even the perks that are given to some organization are fixed. That this organization is supposed to get this perk. But mostly when we talk about private sector, they design their compensation packages in their own way. ठीक है? उनके पास ये छूट होती है, ये लिबर्टी होती है to design their compensation package in their own way, to add certain things, to delete certain things. लेकिन it's not that simple. पहली बात, statutory compliances तो होना ही चाहिए, वो public sector हो या private sector हो. I told you in the last class कि public sector हो या private sector हो, statutory compliances are the must. They are must to have in your salary structure. The other thing is that perks and benefits they differ. Company अपने हिसाब से don't join. Okay, write it on the sheet of paper. Those of you who are present in the class, there's no point joining the class when you're here in the class. Salary structure, it's not that simple to simply add or delete something in your salary package. If the paying capacity of the organization is very good, they might add something as benefits which are given to the which are given to its employees more than what their competitors are paying. Okay, but more often than not, it remains stable or similar for lower posts, for middle management, but for higher management, they differ a lot from company to company. Okay, compensation package को भी define करने का एक तरीका है. उसको define करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है organization में, जैसे external equity. There's a term called external equity. What is external equity? Say for example, say for example, an organization, Infosys, it gives 40,000. Online students, mute your mic only when you need to say something or ask some questions, then you unmute yourself. I don't mute it from here because just in case you have some questions, you'll not be able to ask. 40,000 is given to system engineer, is a post in most IT companies. Okay? Infosys gives, this is just for example, 40,000 to system engineer, and the other blah 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 things that it gives to 40,000. Lump sum it is 40. If its competitor, mute yourself. Online students, mute yourself. When you need to ask some questions, then only unmute yourself. Who is this? Sunil Kumar. Okay. 40,000 is given to a system engineer of Infosys, and its competitor is TCS. Say one more competitor, which is CTS. Okay, this is Cognizant, this is Tata Consultancy. 40,000 Infosys gives. अगर
टीसीएस अपने सिस्टम इंजीनियर्स को इस पोस्ट पे रिक्रूट करने के लिए 40,000 ना दे करके 30,000 देती है और सीटीएस इस पोस्ट के लिए 50,000 देती है, तो इसका क्या रिपरकशंस हो सकता है? दो तीन चीजों को डिड्यूस किया जा सकता है इससे, दो तीन एस्पेक्ट्स को आप डिस्कस कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा था, थोड़ा फिर से सुनाइए। आ रही है मैडम आवाज। ओके, 40,000 एक्सटर्नल इक्विटी क्या होती है? मैं एक्सटर्नल इक्विटी समझा रही हूँ। एक्सटर्नल इक्विटी कॉम्पेंसेशन पैकेज स्ट्रक्चर तो कर सकती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, पर ये इतना सिंपल भी नहीं है। क्यों सिंपल नहीं है? क्योंकि इसके लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ये किसी एक आदमी की बात नहीं है। 2 लाख 3 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपकी पे पैरिटी नहीं रहेगी तो उसका बहुत सीरियस रिपरकशंस किसी ऑर्गेनाइजेशन को झेलना पड़ सकता है। जैसे Infosys is giving 40,000 to its system engineer and its competitor Cognizant Technologies is giving 50,000 to its competitor for the same post, and its competitor TCS, these are all big IT players in the market, right? This much you know. It decides to give 30,000 to its system engineer. अब इस बात का 3-4 तरीके से डायमेंशंस पढ़ा जा सकता है। एक्सटर्नल इक्विटी पढ़ा रहे हैं कॉम्पेंसेशन पैकेज में, क्या पढ़ा जा सकता है? I'll make you write. This is just for explaining. I'll make you write whatever is important. You just pay attention, understand the concept, and then you can write it on your own also. But if you feel, you can write it down. Otherwise, I'll make you write. क्या होगा इसका बताइए? इसका 2-3 डायमेंशंस बताइए। क्या होगा इस चीज का? अगर इन्फोसिस 40,000 दे रही है उसके सिस्टम इंजीनियर को, सीटीएस 50,000 देने के लिए डिसाइड करे और टीसीएस 30,000 देने के लिए डिसाइड करे, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज और बोर्ड क्लियर नहीं दिखी, क्या लिखे कर सकते हैं। आपको काम करना है तो करिए, वरना यू लीव, शिफ्ट करेंगे। और सीटीएस के लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय मिलेंगे और उसका कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। पर एम्प्लॉय अगर वो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है। अच्छा, आप लोगों को ये मालूम है, पहले नहीं मालूम होगा क्योंकि एचआर आप बिल्कुल नहीं पढ़े। डू यू नो हाउ द वर्थ ऑफ अ जॉब इज क्रिएटेड? सिस्टम इंजीनियर एक पोस्ट बनाई गई आईटी कंपनी में, इसको 40,000 ही पे किया जाना चाहिए, पूरे मार्केट रिसर्च, एक्सटर्नल इक्विटी, इंटरनल इक्विटी सब देख के। कैसे डिसाइड होता है कि इस पोस्ट के लिए इतनी सैलरी ठीक है? ये तो होता है ना, राइट? लेक्चरर के लिए इतनी सैलरी होनी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतनी होनी चाहिए, एसोसिएट के लिए होनी चाहिए, फिर प्रोफेसर के लिए इतनी होनी चाहिए, पीएचडी होल्डर्स के लिए इतनी होनी चाहिए, नेट क्वालिफाइड। ये कैसे डिसाइड होता है? जॉब इवैल्यूएशन से। ओके, there is a word in HR which is known as job evaluation. Job evaluation का क्या मतलब होता है? Job evaluation is the process of finding the net worth of a job. ठीक है? Net worth मतलब इस पर्टिकुलर जॉब में जॉब को की कीमत क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसका थ्योरी यही है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हेलो मैम, बोलो मैम बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। सबको नहीं आ रही है कि सिर्फ तुमको नहीं आ रही है? मैम आ रही है आवाज। हमको भी नहीं आ There must be network issue with you, क्योंकि बाकी लोगों को तो शायद आ रही है। राजेश का कान बड़ा। ओके, बोल रहा है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन से ही किसी जॉब का नेट वर्थ निकाला जाता है, मतलब उसकी कीमत, उसकी वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। Does every job in the organization yield the same productivity? No. सब
कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, पर हर जॉब में हर एक ही टाइप की स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। जॉब इवैल्यूएशन का भी फैक्टर्स होता है, क्वांटिटेटिव तरीके से किया जाता है, क्वालिटेटिव तरीके से किया जाता है, रैंकिंग मेथड है, पॉइंट रैंकिंग मेथड है। उन पॉइंट रैंकिंग मेथड्स में वी गिव 5 पॉइंट्स किसी पर्टिकुलर जॉब में मेंटल स्किल्स कितनी रिक्वायर्ड है, फिजिकल स्किल्स कितनी रिक्वायर्ड है, कॉम्पिटेंसी कितनी चाहिए। तो ये सारी चीजें को देख करके किसी जॉब का वैल्यू तय किया जाता है। हायर एम्प्लॉइज इन द सेंस कि सीनियर एम्प्लॉइज को ज्यादा पैसा इसीलिए दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स, और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन इतना पीछे पीछे रहती है उनकी कि उनको रिटेन किया जाए, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक जनरल मैनेजर के डिस्प्लेस होने से बहुत फर्क पड़ जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, एक स्किल्ड मैन पावर के निकल जाने से। एंड द सेम होल्ड्स ट्रू व्हेन सम गुड पर्सन जॉइंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है फाइंडिंग द नेट वर्थ। Not every job yields the same, not every job holds same importance in the organization, and that is why different jobs are paid differently in the organization, and which is what we find through job evaluation. तो इसीलिए अगर हम ये कह रहे हैं, say for example कि लमसम 40,000 किसी सिस्टम इंजीनियर को दिया जाता है, तो ये 40,000 डिटरमिन किया जाता है बहुत रिसर्च करके कि इस पोस्ट के लिए 40,000 इज इनफ, क्योंकि ये सिर्फ एक पोस्ट की बात नहीं है। जितनी आईटी कंपनीज होंगी सब में ये पोस्ट होगा सिस्टम इंजीनियर का, होगा ना। तो इसमें मार्केट रिसर्च भी बहुत ज्यादा की जाती है। क्या होगा इसका रिपरकशन? पहली बात, अगर ये जॉब इवैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि हर एक ही पोस्ट के लिए बिल्कुल एक ही सैलरी दी जाती है। इट डिपेंड्स आल्सो अपॉन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिचर द ऑर्गेनाइजेशन, एनी प्रॉब्लम? Richer the organization, higher it will pay, and the less the organization has money, the lesser it will pay. तो paying capacity important होगी। अगर ये 40,000 दे रही है और ये TCS 30,000 दे रही है, it will be a demotivating factor for people who want to join at the same post of system engineers in TCS, right? And if CTS bears it for 50,000, हो सकता है कि CTS का कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत खराब हो जाए। अगर वो 40 के बदले 50,000 इसलिए देना चाह रही है कि एम्प्लॉइज उसके पास चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सैलरी देने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत मेजर पैसा जाता है। अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, अ ग्रेट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन गोज इनटू पेइंग द सैलरीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और खासकर अगर उसमें एग्जीक्यूटिव्स लेवल है ज्यादा, एग्जीक्यूटिव्स एंड ऊपर, इनको हेवी सैलरी मिलती है ना, 1.5 लाख 2 लाख, इससे कम नहीं। तो वैसे वैसे इतने ऑर्गेनाइजेशन, इतने एग्जीक्यूटिव्स को उसके ऊपर बढ़ते जाइएगा तो और बेनिफिट्स और पर्क्स। अगर कोई कंपनी आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी दे रही है जनरल मैनेजर को, कि आपको कंपनी की कार फ्री में मिल रही है, कंपनी की हाउसिंग फ्री में मिल रही है, फर्निश्ड अकोमोडेशन फ्री में, दैट कॉस्ट इज बीइंग बोर्न बाय द कंपनी। एम्प्लॉय को फ्री में मिल रही है वो, उसको रिटेन करने के लिए, बट दैट कॉस्ट इज बोर्न बाय द कंपनी। हु इज पेइंग द रेंट फॉर दैट हाउस? कंपनी। इसीलिए एक्सटर्नल इक्विटी कॉम्पेंसेशन पैकेज को डिफाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आप मार्केट रिसर्च कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आपके यहाँ जो पोस्ट है और सिमिलर पोस्ट जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास हैं, उन पोस्ट के बराबर आप सैलरी पे कीजिए, वरना कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन ही नहीं करेगा, राइट? देन यू हैव इंटरनल इक्विटी कॉम्पेंसेशन पैकेज को, प्रॉपर कॉम्पेंसेशन पैकेज किन बातों का ध्यान रख करके बनाया जाता है? 1, you wrote external equity. The other you wrote internal equity, right? What is internal equity? Internal equity का मतलब होता है, internal equity का मतलब होता है, मैंने बताया आपको भी जॉब इवैल्यूएशन के बारे में। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, your internal equity should be met, which means people should be satisfied with the salary as per the level. ठीक? अगर मैनेजर की सैलरी असिस्टेंट मैनेजर से कम हो
तो क्या ये इंटरनल इक्विटी मैच कर रहा है? नो। तो आपको ये लेवल हायरार्की इस तरीके से बनाना होगा कि हर लेवल पे एम्प्लॉइज जब जा रहे हैं तो दे आर हैप्पी विद द सैलरी। ओके, और क्या होता है कॉम्पेंसेशन पैकेज बनाने में, और क्या किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? अबाउट द लीगल कॉम्प्लायंसेस, यस, दैट यू हैव टू obey the legal compliances by the government. Okay, there are certain things, there are certain rules and regulations I already told you which are made by government for what happened. Akanksha, no, your name is Akanksha. What happened? So legal compliances have to be obeyed employment laws के हिसाब से। जैसे ये जनरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर वैलिड होती है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने एससी, एसटी, वुमेन और फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोटा रखा है गवर्नमेंट, हाँ, रिजर्व कोटा रहता है। आप हर एग्जाम के गवर्नमेंट सेक्टर के जिस, हाँ नहीं, बीपीएससी में तो विमेन के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच कैटेगरी यू बिलोंग, or women of all categories. So for women it is for everyone, irrespective of which. पूरा reservation should not exceed 50%. That should be, हाँ, सब SC, ST, women, physically handicapped सब मिला के गवर्नमेंट ने रखी है ना, ये सारी चीजें हैं, ये एम्प्लॉयमेंट का ये है। आप कभी भी किसी पब्लिक सेक्टर का रिक्रूटमेंट जब पढ़ेंगे तो आप उसमें रिजर्व सीट्स देखेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना इन लॉज को कंप्लाई किए हुए, बिना इन सीट्स को निकाले हुए, सीट्स को रिजर्व किए हुए अपना रिक्रूटमेंट नहीं निकाल सकती है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट लॉज में आता है। क्या आप फॉलो? नो, देखो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है, इसीलिए कई बार गवर्नमेंट ने ट्राई किया है, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ओरिएंटेड होती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, तो उनको सिर्फ स्किल्स चाहिए, ठीक है, एंड देयर इज नो कंप्लायंस ऑन देम बाय गवर्नमेंट। फिर भी गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारी, तुमने पूछा तो हम बता देते हैं, दिस बेंच इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड लीव द क्लास। You're not interested, I'll mark your attendance. Don't worry for attendance. कोई बात नहीं है, सबको, सब लोग पढ़ने नहीं आते, पर जो आते हैं उनको पढ़ने दो बस। तीसरी बार बोल रहे हैं हम तुमको, I'll mark your attendance anyways. Don't worry. तुमने पूछा, then I'm telling you, time and again, गवर्नमेंट ने ऐसा ट्राई किया कि फिजिकली हैंडीकैप वगैरह लोगों को प्राइवेट सेक्टर ले, उसका पैसा वो भरेगी। अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका जैसे ईएसआईसी वगैरह होता है ना, ईएसआईसी में देखोगे कि 21 अप टू 21,000 का सैलरी वालों को ईएसआईसी प्रोवाइड किया जाता है, ईएसआई कंट्रीब्यूशन होता है। तो उन्होंने बोला कि फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले का 25 इयर्स तक मिलेगा, कुछ कुछ क्लॉज था उसमें, इसलिए ताकि फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को एक तरीके की सिक्योरिटी मिले और प्राइवेट सेक्टर्स भी हायर करें। पर गवर्नमेंट की ये स्कीम भी फेल हो गई, नहीं हायर किया गया, उनकी एफिशिएंसी रुक जाएगी ना। प्राइवेट सेक्टर इज मोस्टली प्रॉफिट ओरिएंटेड, इफ यू आर नॉट वर्किंग दे सेंड यू आउट। उनको बहुत ज्यादा इन चीजों से मतलब, यू हैव टू बी रियली कॉम्पिटेंट टू बी एबल टू वर्क इन प्राइवेट सेक्टर। ओके, तो कॉम्पेंसेशन पैकेज को डिफाइन करने के लिए कौन कौन सी चीजें को ध्यान रखना होता है? एक्सटर्नल इक्विटी, internal equity, legal compliances, okay, legal compliances and और फायदा क्या क्या होता है अगर आपका हाँ लिख, ठीक है लिख लो, याद नहीं रहेगा। आप लोगों को इसी में बेनिफिट्स में ईसॉप वगैरह भी पढ़ना है, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स, जो स्टॉक्स और शेयर्स दिया जाता है बेनिफिट्स में। आज की क्लास में ये समझो कि ये सैलरी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है,
सैलरी कॉम्पेंसेशन में ही आती है ना, वो इसका एक पार्ट है। कॉम्पेंसेशन पैकेज आज पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में सैलरी का कंपोनेंट्स बताएंगे। राइट डाउन, कॉम्पेंसेशन इज डिफाइंड एज compensation is defined as various direct and indirect ways of paying to the employees compensation can be defined as various direct and indirect ways of paying to the employees for their contribution of service rendered to the organization. It is important both at national and international level for the organization. It is important both at national and international level for the organization. For the organization. It is a major HR tool. It is a major HR tool to manage their employees. Manage their employees. It's a process to get its money worth. It's a process to get its money worth. And encourage and hold skilled employees. And encourage and hold skilled employees. मैंने क्या लिखा? हाँ ठीक है, लिखो। मैम आप म्यूट है क्या? आपकी साउंड नहीं आ रही है। It is compensation management. Write down. Compensation management is a major way to link. It is compensation के बाद Compensation management is a major way to link compensation with its general goals and strategies. Major way. With its general goals and strategies and HR strategy. General goals and strategies with its HR strategy. It's an organized practice
It is an organized practice which involves balancing the work-employee relation It is an organized practice which involves balancing the work-employee relation by providing monetary and non-monetary benefits to the employees. Done writing? Yes. Online students done writing? Yes, ma'am. Okay. Write down. The objectives of compensation management is नहीं मैम क्लियर है. the objective of compensation management is point number 1, external equity. Point number 1, external equity. Point number 2, internal equity. Internal equity. अभी समझाए ना? Point number 3, legal compliance. हाँ बोलो. Point number 3, legal compliance. Point number 4, cost control. Point number 4, cost control. Point number 5, motivation of employees. Motivation of employees. Point number 6, employee satisfaction. Done writing? Point number 7 is the last point. Write down. To obtain procure करना employees को. To obtain, maintain. To obtain, maintain and retain the employees in the organization. And retain the employees in the organization. Done? Yes, ma'am. Okay, write down. A good compensation package of an organization Thank you.